अयं निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज संगीता बेन आप शुरू करो। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं जगजीत सिंह की एक प्रार्थना गा रही हूँ। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरू नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम। जय श्री कृष्ण। नाइस भजन और बहुत अच्छा गाया। थैंक यू विजय भाई। सरल और हृदय में उतर जाए ऐसा भजन। रविवार को हमने पारिवारिक मिलन किया बहुत अरसे के बाद। जो सब आए उनका धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे कार्यकर्ताओं को कि जिसके कारण एडमिन को कि जिसके कारण ये संभव हुआ। हमारे तीनों सत्संग स्थल के जितने भी कार्य करते उसमें विशेष इशिता जी, अमी जी, कुणाल जी, इनकी मेहनत थी। प्रज्ञा जी, ये सब ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जो नहीं आ सके थे उनके लिए जो आए थे कुछ शेयर करना चाहिए तो एक 2-5 मिनट के लिए वी कैन शेयर आवर मनोभाव। ये कैसा लगा आपको ये हमारा पारिवारिक मिलन? तो जो नहीं आए थे उनको थोड़ा उसके विषय में आइडिया आ सके। यदि किसी को इच्छा है तो यू कैन शेयर योर फीलिंग्स अबाउट इट। एनीबॉडी? બીજલ ભાઈ અમે તો પહેલી વાર આવ્યા હતા પણ ઓકે. અમને એટલું બધું જ ગમી ગયું છે ને કે હવે એમ થાય કે એવરી મંગળવાર અમે વેટ કરીએ છીએ કે બસ તમારા મુખેથી આ ગીતાનો જે અમે સાંભળીએ છીએ ભજન દરેક અધ્યાય પર તમારું જે શું કહેવાય આપણે કે દરેક અધ્યાય પર તમે જે અમને સારી રીતે સ્પષ્ટ રીતે જ્ઞાન આપો છો ખરેખર અમે ધન્ય થઈ ગયા છે ને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ નીતા આંટી કે જેણે અમને એડ કર્યા છે આમાં
વેરી નાઇસ. અને સાચે એવું લાગે છે કે હવે એવરી ટાઈમ તમે જ્યારે પણ એ કરશો તો અમે પણ સાથે સાથે તમારી સાથે અમી, ઈશિતાબેન બધાની સાથે અમે પણ અમારે જેટલી બનશે એવી હેલ્પ કરીશું. ચોક્કસ ચોક્કસ. આપણી એવી ઈચ્છા છે કે વર્ષમાં 2 આવા આયોજન કરીએ. હા હા ચોક્કસ. એક જે પણ આપણા ધાર્મિક સંગઠનો હોય હમ, એમાં હમ. સૌથી મહત્વનો ઉત્સવ એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા. બરાબર. આપણે ગુરુ પૂર્ણિમાનું મિલન રાખશું અષાઢ મહિનામાં, અને પછી આવી ચોક્કસ. રીતે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં એક પારિવારિક મિલન રાખશું. ચોક્કસ એટલીસ્ટ વર્ષમાં 2 વખત બધાએ મળવું જોઈએ. મળવું જ જોઈએ. યસ, ત્યારે આ પરિવાર કહેવાય. જો મળીએ નહીં તો પરિવાર કહેવાય. મજા આવી. થેન્ક યુ માય બેન. Yeah. એનીબડી એલ્સ? It was a great experience. It was nice to be meeting everyone. પહેલી વાર બધાને મળ્યા. It was my first attendance actually for such a program. Last time મારો મિસ થઈ ગયો હતો. અને બીજા બધા ગ્રુપની સાથે બી મિક્સ એન્ડ મિંગલ થવા મળ્યું, જાણવા મળ્યું, બીજા લોકોના વિચાર જાણવા મળ્યા. It was lovely and really, as you said, very well organized and everything was taken care very nicely. યસ. તમે પણ બહુ સરસ બોલ્યા. અરે જય શ્રી કૃષ્ણ. જો એટલે બધાની અંદર ક્ષમતા છે, આપણે ખાલી બહાર લાવતા ડરતા હોઈએ છીએ. પણ ભગવાનને વચ્ચે રાખો એટલે બધું એની મેળે થાય. આપણે આપને પોતાની જાતને બાજુ પર મૂકી દો એટલે જુઓ કેવું સરસ થાય છે બધું. જ્યાં સુધી ફોકસ આપણા પર રાખશું ત્યાં સુધી સ્ટ્રેસ એવું છે. એનીવન એલ્સ? મેં પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ એટેન્ડ કર્યું. હા, પણ મને દુઃખ થયું કે તમને હું મળી ન શક્યો. તમે કોઈ આગળ આવ્યા નહીં. પછી તમે નીકળી ગયા, મને ખબર જ ન પડી. ના, બરાબર છે. અમને પણ ઈચ્છા હતી પણ જરા નીકળી ગયા અમે. આગળ આવ્યા તો પણ પછી નીકળી ગયા. પણ બહુ જ સરસ પ્રોગ્રામ થયો. પરિવાર મિલનની નામ જ આમ સાર્થક લાગ્યું મને. અને બધા કુનાલભાઈ, અમીબેન, ઈશિતાબેન વેરી વેલ ઓર્ગેનાઇઝ. યસ, બહુ મજા આવી. નહીં આવી શક્યા એનો અફસોસ પણ એટલો થયો. કોણ બોલ્યું? સુજાતા. ક્યાં અટકી ગયા હતા સુજાતાબેન? અરે સડન જ ગેસ્ટ આવી ગયા ઘરે, એટલે મેં લતાબેન સાથે જ કેવડાવ્યું તું નીકળતા પહેલા. મેં કીધું લતાબેન હું નહીં પહોંચી શકું. તમે મ્યુટ થઈ ગયા. એટલે મેં લતાબેન ને કીધું તું ખાસ કેજો તમે મળો તો, કે ભાઈ હું લાસ્ટ મોમેન્ટ પર કેન્સલ કરવું પડ્યું મારે. જેવી પ્રભુની ઈચ્છા, આપણા હાથમાં નથી. હા, ઈશ્વર ઈચ્છા. બરાબર છે. બીજલભાઈ, એમને બી બહુ અફસોસ છે, તમે આવી નહીં શક્યા. હું પણ નહીં આવી શકી, આઉટ ઓફ સ્ટેશન હતી એટલે નોટ. તમે દિવ્યાબેન, કલાબેન જે આપણા રેગ્યુલર છે, મને હતું કે એટલીસ્ટ આ બાને તો આપણે બધા મળશું. યા, અમે પણ બહુ મિસ કર્યું તમારા અને ઘણા ટાઈમ થી તમે બધા હવે આપણે રેગ્યુલર ની પડી રાહ જોતા હતા. તમારા વિડિયોઝ ને ફોટોઝ જોયા, એક્સેલન્ટ. હજી આવી રહ્યું મન થતું હતું કે આવી જાય દોડીને. હજી એક આપણો એક આખી ઇવેન્ટ નો એક નાનો વિડીયો આવી રહ્યો છે, એ આપણે યુટ્યુબ પર અપલોડ કરશું. અચ્છા, યુટ્યુબ પર અપલોડ કરશો ને? હા, એટલે એમાં જે બધાએ ભજન ગાયા, જેમણે વક્તૃત્વ આપ્યું, કવિતા ગાઈ જે લોકો, એ બધું આવશે. થોડું જેટલું પણ કવર કરીશું. થેન્ક યુ. ના, હવે ઓલમોસ્ટ વરસ થયું અમને પણ કરવાનું આ બધું, એટલે બહુ ઈચ્છા હતી જ મને પણ. હાજી હાજી, થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ટાઈમ. હા, કેમ છો દીપકભાઈ? બસ સારું છે, સારી ને? ઈશ્વર કૃપા. બસ બસ. ચાલવા માંડ્યા કે દોડવા માંડ્યા? હવે દોડવા માંડ્યો. તો બરાબર. એમનું ની રિપ્લેસમેન્ટ થયું છે દીપકભાઈ નું, એટલે કલાબેન નહોતા આવી શક્યા, એ લોકો ના આવી શક્યા. ઓપરેશન થયું. પણ દીપકભાઈ દોડે છે એટલે હવે દીપકભાઈ આવશે તમારે. બસ બસ, હવે વાંધો નહીં. ચાલો, બીજું કઈ કે આગળ વધીએ? લાસ્ટ ટ્યુઝડે નું નથી આવ્યો સત્સંગ. હા, યસ યસ, એ મેં જોયું આજે. અમી વન ઇઝ નોટ અપલોડેડ. I'll upload this week. I'll get it uploaded. ઓકે. આપણે ઘણા લોકો બોલ્યા, 15 જણા. ઈશિતા, 15 people were there who performed. Around 15 people, 15 लोग किसी ने भजन गाए,
किसी ने स्पीच दी जो हमारे विषय थे उसके ऊपर, किसी ने कविता पढ़ी, गीत पढ़े। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम की दृष्टि से, लेकिन एक बात समझनी है हमें, भजन अच्छे लगे अच्छी बात है, स्पीचेस अच्छी लगी अच्छी बात है, लेकिन ये साधन मात्र थे। हमारा ध्येय था कि एकत्रित हुए जितने भी लोग थे वो हमें अपने लगे, वो हमारा परिवार लगे हमें। यदि ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ है तो ये सारी चीज व्यर्थ है। सारे भजन थे वो केवल मन का भोग था, सारे जो वक्तृत्व थे वो बुद्धि का विषय था केवल, इट वॉज जस्ट टाइम पास, एक बौद्धिक मनोरंजन और एक कान को अच्छा लगा। यदि हमारा जो ध्येय है, परिवार दिखना चाहिए, ये सभी एकत्रित हुए अपने लगने चाहिए, अगर ये दृष्टि हमारी नहीं बदलती, यदि ये भाव से हम इस एकत्रित सभा को नहीं देखते हैं, तो ये साधन मात्र है, केवल मनोरंजन के साधन, केवल बौद्धिक विलास। अच्छे विचार सुने और भूल गए 2 घंटा बहुत मजा आया, अच्छी बातों पर विचार किया, नीचे उतरते ही सब पानी। ऐसा एक परमानेंट स्थायी भाव निर्माण होना चाहिए हृदय में कि जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एकत्रित हुए, जो भी बैठे, ये मेरा परिवार है। ये भाव अंतकरण के अंदर आना चाहिए। मैंने तो व्रत लिया था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अपना लगन में गोदरेज માંડે એમ સાઈડ પર મને બેસાડી દીધા, ગોદરેજ ને બધાવીને પગે લાગીને જતા રહે, જેને લગન માં થાવ એ રીતે બધા નમસ્કાર કરીને જતા રહેતા હતા મારી આગળથી। પણ આ ખાસ આપણે જોવાનું છે કે આપણા મનમાં ભાવ ઉત્પન્ન થયો કે નહીં, हमारी दृष्टि बदली के नहीं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार है, ये भाव निर्माण होना चाहिए। तब ये जो कुछ भी हमने किया वो सार्थक, तभी सार्थक हो। यही थे भगवान कृष्ण को, यही प्रिय। जितने भी वहां पर बैठे थे सबको मैं देख रहा था, भगवान कितने प्रिय है, भगवान कृष्ण सभी को प्रिय है। लेकिन हमें सोचना चाहिए भगवान कृष्ण को कौन प्रिय हो, ये सोचना बहुत आवश्यक। अंत में भगवान कहते, मेरा ये जो उपदेश लेके जाएगा अन्यथा वो ज्ञान से मेरी पूजा करेगा और वो मेरा सबसे बड़ा भक्त हो। कि आज वहां पर 50 से 60 लोग एकत्रित हुए, आप समझ सकते हो 50-60 यदि समाज में जाकर अन्य तक ये विचार ले जाए तो 500 होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मन में ये निर्धार होना चाहिए, ये आवश्यक है। जो भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि तत्व है उसे भगवत गीता अपील करेगी, भले वो 8th स्टैंडर्ड का बालक हो या 80 साल की वृद्धा हो, सभी को ये चीज अपील करेगी। आधा डजन यंगस्टर्स थे हमारे और कितना अच्छा बोले वो लोग, they spoke so well, कितना अच्छा समझे, अपने विचार रखे उन लोगों ने, ये क्षमता थी उसके उनके अंदर। हमारी जिम्मेदारी बनती है एल्डर्स की कि यंगस्टर्स तक जाएं और हमें जो मिला है हमारे पूर्वजों से वो हम कंटिन्यू रखें और हमारे आने वाले जनरेशन तक हम वो लेके जाए। ये हमारा परम धर्म है। ये मनुष्य के सिवा ये समझ किसके अंदर तो मुझे जो प्राप्त हुआ है अच्छी बातें वो मैं आने वाली जनरेशन को समझा के जाऊं, यही शास्त्र है। हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव किया, जो सीखा, वो हमारे लिए लिख के गए, बेटा ये करना है, विधि है, ये निषेध, ये नहीं करना, दैट इज शास्त्र। हमारी जिम्मेदारी है हमारी आने वाली प्रजा को उन तक पहुंचना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार माँ जैसे थाली लेके बालक के पीछे घूमती है, बालक कहेगा नहीं खाना है मुझे, भाग जाएगा, नखरा करेगा, रोएगा, माँ नहीं थकती है, माँ नहीं हारती है, उसके पीछे दौड़ती है। ऐसे सतत प्रयास होना चाहिए हमारा इस विषय के लिए, अभी हम माता पिता के स्थान पर पहुंचे और हमारा जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक करें कि मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, वो अन्य को भी मैंने समझा, तब जाके मन के अंदर एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त होगी। आई लिव्ड लाइक अ ह्यूमन, दिस इज ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट। एज अ पर्सन हमारी जो क्वालिटीज है, मैंने मेरी क्वालिटीज तो बाहर निकाली, अन्यों को भी मदद की मैं, तब जाके विश्व में सत्युग जैसा
वातावरण निर्माण होगा। ये ध्येय है भगवत गीता। ये प्रकट किया जब उपदेश भगवान ने, ये ज्ञान प्रकट किया, ध्येय क्या था, क्यों कहा अर्जुन को? यदि सिर्फ अर्जुन को कहना था तो संजय को क्यों उन्होंने ये शक्ति दी भगवान व्यास ने कि वो भी सुन सके, ताकि ये विषय हमारे तक पहुंच सके, सामान्य मनुष्य तक पहुंच सके। इसके लिए दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि की प्रदान की संजय को। संजय ने धृतराष्ट्र किया और इस द्वारा हमें भी भगवत गीता हमारे सामने प्रकट। तो इस प्रकार जब हम मिलते हैं तो किसी ध्येय के साथ मिलते हैं। साधन केवल हमें आकर्षित करने के लिए कि उस साधन के द्वारा हमें ध्येय सिद्ध करना है। तभी हमने जो भी यत्न किया है, जो भी प्रयत्न किया है, वो सिद्ध होगा, वो सफल होगा। तो आगे बढ़े। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 कर्म संन्यास योग, प्रकरण ज्ञान का है। अध्याय के समापन की ओर हम जा रहे हैं। ज्ञान का अधिकारी कौन, इसे ज्ञान मिलना चाहिए। आज के युग में जिसको बुद्धि तत्व दिया गया है वो ज्ञान का अधिकारी। एंट्रेंस एग्जाम 50% मार्क जो एंट्रेंस एग्जाम में लाए वो सीए कर सकता है, एग्जाम्पल सीए कर सकता है। नीट एग्जाम में, जेई में इतने परसेंट मार्क लाया वो इंजीनियरिंग कर सकता है, वो डॉक्टरी कर सकता है। हिंदू धर्म ने बहुत डीपली सोचा है, ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान का दुरुपयोग हो सकता है। इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है अगर व्यक्ति की वृत्ति ठीक नहीं रही तो। इसके लिए बौद्धिक ज्ञान देने से पहले उसकी वृत्ति को शुद्ध करो, उसके बाद वो ज्ञान का अधिकार। इसीलिए आज देखो मेडिसिन के वर्ल्ड में कितना एक्सप्लॉइटेशन, शोषण हो रहा है। मेडिसिन जाइए आप, हॉस्पिटल की जगह प्रॉफिट मेकिंग उनका इश्यू आता है हॉस्पिटल्स का। जैसे शेयर बाजार में कंपनी का इश्यू आता है, वैसे हॉस्पिटल्स का इश्यू। यानी हॉस्पिटल जहां पर लोगों की पीड़ा दूर की जाती थी, अब एक प्रॉफिट कमाने का माध्यम बन गया। एक्सप्लॉइटेशन। स्कूल का भी वही हाल है। जैसे कोई मल्टीनेशनल हो, कंपनी हो, जिसकी हर एक कंट्री में एक शाखा हो, हर एक शहर में एक शाखा हो, वैसे ही स्कूल्स की 100 शाखाएं, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, भारत भर में बिजनेस बना दिया। मनुष्य को जो मनुष्य बनाने का साधन था ज्ञान, उसमें से भी अभी कमाने का जरिया बना दिया। ये क्यों हुआ? वृत्ति ठीक नहीं थी। ज्ञान की जो शक्ति थी उसे पैसा कमाने के लिए उपयोग होने लगी। इसके लिए पहले वृत्ति को शुद्ध करो। वृत्ति कैसे शुद्ध होगी? उसके लिए 4 नियम। बहिरंग चतुष्टय, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा, और अंतरंग चतुष्टय, उसमें श्रवण मनन निधिध्यास और तत्व पदार्थ दर्शन। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी विचार कर चुके हैं, इसके लिए रिपीट नहीं करता। बट ज्ञान का अधिकारी तब होंगे हम जब बहिरंग चतुष्टय अंतरंग चतुष्टय, इसके द्वारा हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाए। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पिछले श्लोक में हमने देखा। ज्ञान प्राप्ति में बाधा क्या निर्माण करती है? एक शंका, एक मिथ्याभिमान, मुझे सब कुछ आता है। यदि ये भाव है तो बुद्धि के दरवाजे बंद, कुछ नहीं सुनाई देगा। शंका, ये सही है कि गलत है? ये शंका एक बार निर्माण हो गई, हम मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो श्रद्धा होना आवश्यक है। शंका जाती है तब श्रद्धा उद्भव होती है। राधा श्रद्धा उद्भव होती है तो सभी शंकाओं का निवारण हो जाता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होता है। तत्परः संयतेन्द्रिय, अन्य बाधा कौन डालती है? विक्षेप, हमारी इंद्रिय भटकती है। सत्संग के सामने बैठे हैं लेकिन मन में क्या चल रहा है अपने आप को पूछो। क्या 45 मिनट सब कुछ सुना आपने कि मन कहीं और चला गया था? क्यों मन कहीं और चला गया? कुछ दिख गया, कुछ याद आ गया, कुछ सुन लिया।
और ध्यान भटक गया। इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं। संयतेंद्रिय यानी जिनकी इंद्रिय नियंत्रण में है, वो इंद्रियों का नियंत्रण में होना यानी ध्यान, एक ही विषय पर फोकस करना। ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब मन भटकेगा नहीं, और जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस होगा, ध्यान केंद्रित होगा, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक। तत्परता, आपके अंदर स्वयं इच्छा होनी चाहिए। अतो अतो ब्रह्म जिज्ञासा, यदि ब्रह्म को जानना है तो पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं, ये विश्व क्या है, पर ब्रह्म क्या है, जिज्ञासा होनी चाहिए। व्हाट इज इट? बालक न्यूटन में वो जिज्ञासा थी। सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? अपने पिताजी को पूछा होता तो उन्होंने एक लाफा मार दिया होता, सो जा। बट वो न्यूटन था, वो उसके माइंड से गया नहीं। जिज्ञासा, ये सेब नीचे ही क्यों पड़ा, ऊपर क्यों नहीं पड़ा? वैसे ही बुद्ध के मन में जिज्ञासा, व्यक्ति वृद्ध होता ही क्यों है, व्यक्ति को मृत्यु आती ही क्यों है, व्यक्ति को रोग पीड़ा होता ही क्यों है? जिज्ञासा हुई। क्यों दुखी होता है व्यक्ति? ये जिज्ञासा उन्हें तत्व ज्ञान तक लेके गई। तो जिज्ञासु होना, ज्ञान के लिए तत्पर होना, यह आवश्यक। श्रद्धा होना, तत्परता होना और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, ये जब हो जाता है तो ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति। ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है? शांति। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं और बम्बई शहर में बाहर कितनी प्रवृत्ति चल रही है, लेकिन उससे हमें क्या? कितनी कुछ एक्टिविटी बाहर चल रही है शहर में। वैसे ही आत्मा कहता है ये शरीर तो मेरा शहर है, मेरा नगर है, मैं तो आत्मा हूं, उसके अंदर बैठा हूँ। शरीर में कितनी प्रवृत्ति चलती है, मुझे क्या उस? ये जब भाव आएगा, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर प्रकृति से प्राप्त है और उसमें क्रिया होती रहेगी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, तब ये ज्ञान जब आएगा, तब मन के अंदर शांति आएगी। शांति अचिरेण अधिगच्छति। चीर यानी लंबा, अचिरेण यानी अल्प। अल्प समय में ज्ञान प्राप्त होने से शांति प्राप्त हो जाएगी। ये था हमारा 39 श्लोक। इससे आगे बढ़ते हैं 40th श्लोक पे। 39 श्लोक हमने पिछली बार किया था, यहाँ पे खाली रिफ्रेश किया मैंने। अब संपूर्ण भगवत गीता में भगवान ने दोनों पहलू बताए। एक पॉजिटिव साइड, विधि मुख से कहा ज्ञान प्राप्त करने से तुझे ये फायदा होगा, और एक नेगेटिव साइड दिखाई, निषेध मुख से कहा कि यदि ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तो क्या होगा। अभी अंत के जो 3 श्लोक है 4थे अध्याय के, तो निषेध मुख से बताया कि जो अज्ञानी होगा, जिसको श्रद्धा नहीं होगी, उसका क्या होगा वो। तो 40th श्लोक यदि आपके सामने है तो पढ़िए। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशय, संशय यानी संशय, हिंदी में संशय के राइट प्रोनाउंसिएशन इज संशय, क्योंकि स के बाद श है, पीछे स आता है, तो ऊपर जो अनुस्वर है उसको सौ कहते हैं, हंस, हंस कहते हैं, वो हंस होना चाहिए। दैट्स द करेक्ट वे इन संस्कृत। तो संशय यानी शंका। शंका किसको निर्माण होती है, क्यों शंका निर्माण होती है? डाउट कौन करता है? एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन। कैन एनीबडी टेल मी? डाउट, शंका किस क्यों उत्पन्न होती है, उसका कारण क्या है डाउट होता है? जिसे अश्रद्धा, अश्रद्धा, हाँ, श्रद्धा ना हो। श्रद्धा आने से शंका जाती, हाँ, लेकिन शंका आती क्यों है? कब शंका आती है? शंका का कारण क्या है? कॉन्फिडेंस अनसर्टेनिटी, प्रेम, अनसर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस नहीं, और एनीथिंग एल्स? पॉजिटिवनेस, नहीं, पॉजिटिवनेस, भरोसा नहीं, हाँ, भरोसा नहीं भगवान पे।
भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। सिर्फ भगवान के विषय में नहीं कहता हूँ, मैं नॉर्मल जो हमें कितनी सारी चीज पे डाउट आता है ना। विवेक डाउट, है और विवेक श्रद्धा नहीं है। हाँ, विवेक श्रद्धा विवेक- ये अध्यात्म से रिलेटेड है। मैं कॉमन लाइफ में पूछ रहा हूँ, हमें डाउट क्यों आता है? कोई चीज समझ में ही नहीं आती तो इसके प्रति डाउट आ जाता है कि ये वेरी क्लोज टू इट। हाँ। समझ में नहीं आती है मतलब अज्ञान। अज्ञान। शंका किससे आता है? अज्ञान से। अगर ज्ञान हो तो अच्छा। शंका आता ही नहीं है हमें। वो 6 अंधे व्यक्ति थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, उनकी जो ज्ञानेंद्रिय थी आंख, वो ही नहीं थी, और हाथी की पूंछ को सांप समझ बैठे वो। यदि दृष्टि उन्हें मिलती तो ज्ञान होता कि ये तो हाथी है। Whenever there is doubt in mind, आपके मन में जब भी शंका उत्पन्न हो, तभी समझना कि आपका ज्ञान अधूरा है। जब तक अधूरा ज्ञान, अगर ज्ञान है ही नहीं तो नथिंग, पता ही नहीं। आज से 500 वर्ष पहले किसी को पता ही नहीं होगा कि कैंसर है, तो डाउट आता ही नहीं है कि ये कैंसर होगा कि टीबी होगा कि डायबिटीज होगा। पर हमें अधूरा ज्ञान है। कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, टीबी हो सकता है कि नहीं पता नहीं है। हाफ नॉलेज। जिसको पूर्ण अज्ञान है वो सुखी है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। क्या रोग है मेरे अंदर पता ही नहीं, हंसते रहता है वो, नो टेंशन। बट अगर आधा ज्ञान है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट है कि नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये शंका निर्माण करता है मन के अंदर। तो अधूरा ज्ञान शंका उत्पन्न करता है। जैसे ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका तो सभी शंकाओं का निवारण। ये बात। तो ज्ञान प्राप्ति से हमारी शंका दूर होती है, और शंका दूर होने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब तक शंकाएं हैं तब तक श्रद्धा उत्पन्न होना संभव नहीं। या फिर एक बार श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो सभी शंकाओं का निवारण। ज्ञान योग में क्या होता है? हम ज्ञान के द्वारा धीरे 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 ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जब अंत में सिद्धि प्राप्त होती है तब क्या होता है? जब सभी शंकाओं का निवारण और मैं और ईश्वर एक है, ये हमें पता चलता है। और जैसे ये पता चलता है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। जबकि भक्ति योग में शुरुआती श्रद्धा से होती है। मैं और भगवान, हम विभक्त है ही नहीं, हम अलग है ही नहीं, हम युक्त है। ये भाव से ही शुरुआत होती है। भक्ति बिगिंस विद श्रद्धा, और फिर ये श्रद्धा ज्ञान में परिवर्तित होती है, और फिर धीरे 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 जब भगवान से एक रूप हो गए, हम कौन है ये पता चला, ईश्वर कौन है ये पता चला, और हमारा और ईश्वर का संबंध पता चला, अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता है। दोनों में रिवर्स क्रिया है। एक ज्ञान से शुरू होकर परिपूर्ण भाव भक्ति में होती है, भक्ति योग भक्ति से शुरू होकर ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान में परिपूर्ण होता है। बट बहुत डिफिकल्ट है भक्ति होना, आसान नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है। भक्त होना यानी अपने आप को भूल जाना, और मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, मैं हूं ही नहीं, यहाँ से भक्ति स्टार्ट हो। मैं ईश्वर का अंश हूं, अपने आप को भूल जाना, यहाँ से भक्ति का उद्भव होता है। तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जो अज्ञानी है उसको अश्रद्धा है। एक अज्ञान के कारण उनको शंका है, और दूसरा श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धश्च, उसके कारण उनको संशय है, उनको शंका है। ज्ञान नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं। पहले तो ज्ञान क्या है ये समझना पड़ेगा, और विशिष्ट ज्ञान क्या है ये समझना पड़ेगा। विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान के आगे वी आया, ये वी मीन्स विशिष्ट ज्ञान। एंड व्हाट इज ज्ञान? अगर हम इमीडिएटली इंग्लिश में कहेंगे नॉलेज, ये तो उसका सब्स्टिट्यूट हुआ। उसकी व्याख्या क्या? व्हाट इज नॉलेज? देन आई विल हैव टू आस्क, यू कांट से ज्ञान, डेफिनेटली नॉट। तो ज्ञान यानी उसको 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक सृष्टि का ज्ञान, संसार का ज्ञान। ये क्या हुआ? सारी सृष्टि है,
उसको हमने कितने विषय में बाइफरकेट किया है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब क्या है? ये सृष्टि का ज्ञान, सारी वनस्पतियों का ज्ञान बॉटनी, व्यक्ति का ज्ञान बायोलॉजी, सृष्टि में उत्पन्न सभी पदार्थों का ज्ञान फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये सभी सृष्टि के जो शाखाएं हैं उसे हम ज्ञान करेंगे। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट व्यवहारिक ज्ञान, व्यक्ति का व्यक्ति से व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिसे हम संस्कार कहते हैं। बचपन से बच्चे को हम समझाते हैं, घर बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो एक व्यवहारिक ज्ञान, आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, आपका वर्तन, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, रिलेशन बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स, ये व्यवहारिक ज्ञान। एक मैं हूं और एक समाज है, ये मेरा समाज के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, समाज में मेरा वर्तन कैसा होना चाहिए, ये व्यवहारिक ज्ञान। एक सामान्य ज्ञान जो सृष्टि का ज्ञान है, अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, ये सामान्य ज्ञान। सृष्टि का ज्ञान, अग्नि सृष्टि का एक अंग है, पानी में हाथ डालने से भीग जाते हैं हम, ये सामान्य ज्ञान है जो हमने सृष्टि से प्रदान किया है, सृष्टि से प्राप्त किया है। वो एक सामान्य ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान, ये हुआ ज्ञान, नॉलेज, सामान्य। एंड व्हाट इज विशिष्ट ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, कि मैं ये सृष्टि, ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। और इसकी जो अनुभूति होती है और ये अनुभूति से जो प्राप्त होता है वो विशिष्ट ज्ञान, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। और ये आध्यात्मिक दृष्टि से समझा हुआ विशिष्ट ज्ञान। अदरवाइज हम लोग विज्ञान यानी साइंस, सृष्टि के ज्ञान को भी हम साइंस कहते हैं और विज्ञान को साइंस से जोड़ दिया है। वो ज्ञान है, नॉलेज है, और ये विशिष्ट ज्ञान है, ब्रह्म की समझ, चैतन्य की समझ, जो जड़ तत्व क्या है और चैतन्य तत्व क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जो ज्ञान है, ये विशिष्ट ज्ञान, जिसे हम विज्ञान कहें। तो जिसको सामान्य ज्ञान ही नहीं है, वो विशिष्ट ज्ञान तो क्या प्राप्त करेगा? सामान्य ज्ञान ना छापा चाहिए, विशिष्ट ज्ञान तो अपेक्षा ज આપણે ક્યાંથી કરીએ? अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति, ऐसे व्यक्ति का पतन होता है। कौन से पतन की बात है? उसकी संपत्ति का पतन? जी नहीं। उसके ज्ञान का पतन? जी नहीं। उसके स्वास्थ्य तक का पतन? जी नहीं। आध्यात्मिक पतन। फिर से पशु बन के भी आ सकता है, मनुष्य योनि प्राप्त होगी, नॉट नेसेसरी। जीव जंतु बन के भी वापस आ सकता है। इस जन्म में पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म से अच्छा जन्म मिल गया, नॉट नेसेसरी अगला जन्म भी इतना अच्छा प्राप्त होगा तुझे, ये पतन है। मनुष्य जन्म से जीव जंतु पे आ गए हम, दिस इज पतन। विनिश्यति, ये कौन किसका हो सकता है? जो संशयात्मा है, जिसको शंका है, न ज्ञान है न श्रद्धा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आध्यात्मिक पतन है हमारा। जो मनुष्य का उच्च योनि में जन्म हुआ है, उच्चतम योनि में जो जन्म हुआ है हमारा, ये जन्म को हम सफल कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं? अपने आप से पूछो, एज ए ह्यूमन जो आप कर सकते हो कर रहे हो? चाणक्य नीति में कहा भय निंद्रा आहार में तो चारों कॉमन है हर एक लिविंग बीइंग में, खाते पीते रिप्रोड्यूस करते हैं, हम भी करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। यदि हम भी वही है तो मनुष्य जन्म विफल, ये बात है। पतन, विनिश्यति, संशयात्मा, अज्ञानी, और जिसको श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा, जिसको शंका है वो कभी सुखी नहीं होगा। एक इतनी शंका हमारे मन में रात की नींद आराम कर सकती है,
आज मैं किटी पार्टी में नहीं गई, वहां पर क्या बातें की होगी मेरी इन माई एब्सेंस। ये शंका आ गई तो मन के अंदर, ये शंका आ गई तो देखो रात की नींद उड़ जाएगी कि मेरे लिए क्या बातें की होगी उन लोगों ने। कोई भी इतनी सी शंका, किसी व्यक्ति के ऊपर भी शंका आ गई और यदि वो क्लियर नहीं हुई तो हमारा संबंध तोड़ सकती है वो शंका। वो शंका जब मन के अंदर आती है, वी आर नॉट रियलाइजिंग ये क्या हो रहा है। हमारी बुद्धि इतनी क्लियरली सोच नहीं सकती है कि मुझे ये शंका है उसका मैं निवारण करूं, उस व्यक्ति के साथ प्रेम से बैठकर मैं क्लैरिफाई करूं कि ये बात थी या ये बात थी। लेकिन हम मन में ही शंका भर के रखते हैं, यहाँ तक कि वो संबंध ही टूट जाता है। अज्ञान। जब भी शंका है उसको ऑब्जर्व करो, इसका कारण क्या है, इस पर विचार करो और उसका निवारण ये सोचो। हम रिएक्ट करते हैं, निवारण नहीं सोचते उसका, वी रिएक्ट ऑन। मन से जो भाव आता है उत्पन्न निकाल देते हैं उसका कारण सोचने के बिना। कोई भी कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कॉज है, एक कारण है। देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट विदाउट कॉज। कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है कारण के बिना। जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक कारण होना ही है। कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। विदाउट कॉज देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट। कॉज पर, कारण पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये यदि हुआ तो इसका कारण क्या है। यदि कारण नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाकर हम कहे कि हमें दवाई दीजिए, डॉक्टर देंगे दवाई। डॉक्टर पूछेंगे क्या हो रहा है ये तो बताइए, फरियाद क्या है आपकी, लक्षण क्या है, क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर क्या हो रहा है आपको। कारण ढूंढ रहे हैं, आपको जो तकलीफ हो रही है उसका कारण क्या है। क्योंकि जब कारण पता चलेगा तब उसकी दवा दे सकेंगे। व्यवहार में भी ये होना चाहिए। इसका यदि गलत लगा तो विदाउट रिएक्टिंग सीधी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं, कारण ढूंढिए। उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी कि वो नहीं आ सके, संभव है मन से इच्छा थी बट कारण ऐसा आ गया, संजोग ऐसे आ गए कि वो नहीं आ सके। समझना चाहिए, दूसरों की मजबूरी भी समझनी चाहिए, तभी व्यवहार चलेगा। नो कंप्लेन। कंप्लेन करने से, तकरार करने से कभी नहीं चलेगा संबंध। बड़ा मन रखना पड़ेगा। उदार चरितारम तो, छोटा मन रखा हम ही दुखी होंगे। शंका करेगा वो सुखी नहीं होगा, न स्वयं सुखी होगा न अन्य को सुखी करने देगा। जिसके माइंड में डाउट है, और ये जो डाउट है वो बुद्धि का कारक है। हम बुद्धिशाली व्यक्ति को बहुत बड़े समझते हैं, महान समझते हैं, और बहुत पीड़ा दी है इन लोगों ने भी। क्योंकि जितने भी शंका है वो बुद्धि के कारण होती है। जो भला भोला इंसान होता है जिसकी बुद्धि आईक्यू कम होती है उसको शंकाएं होती है नहीं। कभी उसका जीवन देखो, सब पे भरोसा करता है, ही ट्रस्ट एवरीबडी। जिसकी आईक्यू ज्यादा होती है उसको बुद्धि में उसको शंकाएं दिखती है, उसको फॉल्ट्स दिखते हैं। बुद्धि के कारण शंका होती है। दूसरों के दोष देखने के लिए भी बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि की पॉजिटिव साइड है वो समझनी है और नेगेटिव साइड को दूर करनी है। श्रद्धा, विश्वास, स्वयं पर विश्वास और अन्य पर विश्वास, ये जब तक नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। और आज तो किसी को किसी पे विश्वास नहीं रहा। सोचिए समाज की क्या व्यवस्था हुई होगी। नोबडी ट्रस्ट एनीबडी। हर साल केवाईसी मंगाती है बैंक, नो योर कस्टमर। अरे एक साल में मैं बदल जाने वाला हूँ, 20 साल से तेरे यहाँ मेरा अकाउंट है, स्टिल नो योर कस्टमर। व्हाई यू वांट टू नो मी एवरी 1 ईयर। श्रद्धा नहीं रही, विश्वास नहीं रहा किसी को किसी के ऊपर। तो नायम लोको अस्ति न परो। ये लोक में तो सुखी नहीं होगा शंका करने वाला व्यक्ति, दूसरे लोक में, परलोक में भी सुखी नहीं होगा वो, क्योंकि उसके कर्म ऐसे होंगे। शंका करने से जो नेगेटिविटी माइंड में आ जाएगी उसके कर्म भी नेगेटिव होंगे।
खुद को भी दुखी करेगा, दूसरे को भी दुखी करेगा। ना स्वयं सुखी होगा, ना अन्य को सुखी होने देगा। और ये लोक में तो दुखी रहेगा, परलोक में भी दुखी रहेगा ऐसा व्यक्ति। न सुखम संशयात्मा, ये लोक में सुखी होगा ना परलोक में सुखी होगा। जो संशयात्मा है, यानी जो डाउट करता है, शंका करता है, संशय करता है। तो संशय को, शंका को दूर कैसे रखेंगे? श्रद्धा से। ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट गॉड। भगवान जो कुछ भी करेगा अच्छा करेगा मेरे लिए, क्यों मैं टेंशन करता हूँ? ईश्वर पर श्रद्धा रखो, अपने आप पे श्रद्धा रखो, परिस्थिति पे श्रद्धा रखो, अच्छा ही होगा। यदि पीड़ा मुझे पूछे बिना आई है तो सुख भी मुझे पूछे बिना आएगा। नथिंग इज परमानेंट। मनुष्य लोक में या पीड़ा आ जाए तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये भी चली जाएगी एक दिन। और सुख मिले तो खुश नहीं होना है, वो भी चला जाएगा एक दिन। यदि ये हमें क्लियरली दिखाने लगे तो विनम्रता आएगी। वी विल बी हम्बल। नथिंग इज परमानेंट। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ जाने वाला है। ये बाल काले में से सफेद कब हो गए पता ही नहीं चला। किसी ने ऑब्जर्व किया कब हो गया? पता ही नहीं चला। जीवन निकल गया, पता नहीं चला। तो जो करना है आज कर। द प्रेजेंट मोमेंट इज सत्य। कल मैंने नहीं देखा और पास चला गया, हाथ से निकल गया वक्त। नदी के सामने खड़े रहो, बहती नदी, जो पानी एक बार बह गया आंखों के सामने से कभी वापस नहीं आएगा नदी का। वैसा ही समय का है, जो एक बार निकल गया वापस कभी नहीं आएगा। कल मेरे हाथ से छूट गया है, यस्टरडे, पास्ट। फ्यूचर मुझे पता नहीं, भविष्य जो है वो आज है तेरे पास। आज को ठीक तरीके से जी ले तू, फिर कल जो तेरा आएगा वो भी अच्छा होगा और पास्ट की स्मृति भी अच्छी होगी। अच्छे कर्म किए हम, अच्छा सोचा हमने सभी के बारे में, अच्छा कहा हमने, अच्छा सुना हमने। भगवान को जब मन में बसाता है तब ये शक्य है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर। हमने भक्ति योग से शुरुआत क्यों की? दैट इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। भक्ति इज द अल्टीमेट पेनेशिया। पेनेशिया यानी सभी मर्ज की एक दवा। आपके जो भी साइकोसोमेटिक पीड़ाएं हैं सबका इलाज है भक्ति। जो मन से उद्भव होते हैं जितने भी रोग, तो सबका इलाज है भक्ति। मन और बुद्धि में ईश्वर को स्थापित कर दो और सब नेगेटिविटी गई आपके अंदर, ओनली पॉजिटिविटी। सन्यासी बन जाएंगे आप। केवल आपके लिए नहीं जिएंगे, सारे समाज के लिए जिएंगे आप। आपकी दृष्टि बदल जाएगी। सारी पृथ्वी मेरा परिवार है। फिर आपकी जो सोच होगी वो उत्कृष्ट हो जाएगी। सबका भला किसमें हो ये आपकी आंखों के सामने आए। तो नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। यदि संशय निकालना है तो शंका न करो, श्रद्धा रखो। इससे हम सब सुखी हो। ये था हमारा 40वां श्लोक, 40वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइए, या किसी को कुछ शेयर करना हो इसके रिलेटेड, मन में न रखिएगा, बताइए। બીજલભાઈ, हाँ बोलो। બીજલભાઈ, हाँ बोलो। હા, અહીંયા તમે કહ્યું બુદ્ધિ બુદ્ધિ વધારે હોય તો ક્ષમતા, બુદ્ધિ ઠીક થાય એને બદલે સંકુચિત માનસ કહી શકાય? हाँ जी, ये पण, કે માનસ જ તમારું વધારે સંકુચિત હોય, પછી ભલે બુદ્ધિ ઓછી હોય પણ તો વધારે શંકા ને બધું વધારે આવે. मन पर नियंत्रण बुद्धि નું હોય. मन કરતા બુદ્ધિ પર એટલે એનાથી ઉપર.
તો મન જો સંકુચિત હોય અચ્છા અને આપણી બુદ્ધિ જાગૃત હોય તો એ સંકુચિત મનને આપણે હમ. ટ્રીટ કરી શકીએ. પણ જો બુદ્ધિ જ શંકા કરતી હોય તો કોઈની તાકાત નથી તેને બદલી શકે. એ વાત છે. પણ એ બીજા બદલી શકે. તમારા ગુરુ પાસે તમે બેસો ને જ્યારે તમને સાચું જ્ઞાન મળે, that time you હમ. realize કે ગઈકાલ સુધી જે રીતે હું વિચારતો હતો એ ખોટું હતું. હા હા This is the બરાબર right time. આ રીતે વિચારવું જોઈએ. સિમ્પલ આપણે કહીએ ને, ગ્લાસ અડધો ખાલી ન જોઈએ પણ ભરેલો છે. બરાબર બસ આપણી બરાબર. દ્રષ્ટિ બદલવાની જરૂર છે. Right. Anything else? कल सॉरी, कल हमारा कार्यक्रम 2-2.5 घंटे हुआ और एक के बाद एक लोग आने लगे कि नहीं हमें भी कुछ कहना है, हमें कुछ भजन गाना है, हमें कुछ बातें करनी है। और सबको इतना बोलते देखकर मुझे इतना विस्मय हुआ, सत्संग में क्या हो जाता है सबको। इतना मैं कहता हूँ किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ प्रश्न है, चुप, सन्नाटा है। लेकिन देखो वहां पर कैसे आप सब बदल गए थे और मैं मन ही मन हंस रहा था। कल देखना 9:15 बजे ये सबको क्या हो जाता है। ये वातावरण का असर है, बिलीव मी। નહીં આપે કીધું ને કે પરિવાર ભેગું થાય એટલે એકબીજાના મનની વાતો વાગોળે. मन એટલે खुले माणसोना। પર હતા નીતાબેન, પરિવાર જેવું લાગતું હા. હતું એટલા માટે. નીતાબેન એ પરિવાર હતો તો આ શું છે? આ બી પરિવાર જ છે પણ તો પછી નથી, પ્રત્યક્ષ નથી, પરોક્ષ છીએ. કરેક્ટ. નહીં, તમે જે ભાવથી આવ્યા છો ને એ અલગ છે. ત્યાં મળવા આવ્યા હતા બધાને, અહીંયા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા આવ્યા છો, સાંભળવા આવ્યા છો. આ જે કારણ છે એ અલગ છે. બીજલભાઈ, હાજી. આધ્યાત્મ એટલે હું તમને મેં મારી જે સમજ મેં કંઈક વાંચ્યું છે એના ઉપરથી તમને કહું, હા, આધિ અને આત્મ એ એનું સંધિ થાય છે. યસ, આધિ એટલે તરફ ટુવર્ડ્સ જવું, આત્મા તરફ જવું, ધેટ ઇઝ આધ્યાત્મ. કરેક્ટ. એટલે આપણે અત્યારના એમાં જે લોકલ આપણા લોકોમાં જે સમજણ સૂઝ સમજણ છે તે એમ કે રિચ્યુઅલ ને એમાંથી જ એ બધું એ થાય છે. પણ આ આધ્યાત્મનો મિનિંગ પ્રોપર જો સમજે દરેક વ્યક્તિને થોડી સમજ પડે તો એ મને લાગે છે કે ઘણું હેલ્પફુલ આગળ જતા થાય. આ 6 વર્ષમાં મિનિમમ 12 વાર મેં કીધું હશે આત્માની અધિ અધ્યાત્મ. અતિ આધ્યાત્મ. કરેક્ટ. એ એની કરેક્ટ વ્યાખ્યા, લિટરલ વ્યાખ્યા. કરેક્ટ, લિટરલ વ્યાખ્યા. આત્મા તરફ લઈ જાય છે ઓર આત્માને રિલેટેડ જે પણ મેટર છે આધ્યાત્મિક મેટર, કરેક્ટ. એ રીતે પણ એને જોઈ શકાય આપણાથી કે જે આપણને એક આત્મા તરફ લઈ જાય અને આત્માથી રિલેટેડ જેટલું પણ છે એ બધું અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મ. થેન્ક યુ વિજયભાઈ. ચાલો આગળ વધીએ. આજે 5 મિનિટ છે. ઇન્ટ્રોડક્શન લઈએ શ્લોકનું, ખાલી એક નવા શ્લોક. गुजराती पीपल आर इन अ मेजोरिटी यार. हिंदी में से कब गुजराती पर हम ट्रांसफर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. ये देखिए, है ना. अनुज भाई तिवारी हमारे कुछ बोलना चाहते हैं. वो આજે ગુજરાતી માતૃભાષા દિન છે ને એટલે બીજલભાઈ. नहीं भाई, कुछ लोग हैं हमारे जो गुजराती नहीं समझते, इसके लिए हम हिंदी में ये रखा है. जबकि हमारा जू सत्संग स्थल में तो मेजोरिटी नॉन गुजराती है, इसके लिए वहां भी हिंदी चलता है. पार्ला सत्संग टोटल गुजराती, वहां गुजराती में होता. तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं 41वें श्लोक के तरफ. अभी ये संशय हमें सुखी नहीं होने देता है, शंका से दुख उत्पन्न होता है. तो ये संशय को दूर करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि हमारी शंका कैसे दूर होती है. तो ये उत्तर भगवान ने 41वें श्लोक में और 42वें श्लोक, 42वें श्लोक पे 4थे अध्याय का समापन होगा. तो 41वां श्लोक आपके सामने आज थोड़ा ही संक्षिप्त में देखेंगे. पढ़िए. योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सन्निच्छन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय.
ये संशय को निकालेंगे कैसे? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सन्नछिन्न संशयम। संशय को ज्ञान सन्न छिन्नम यानी चिन्ह यानी काटना, ज्ञान रूपी तलवार से आप शंका को काट सकते हो। ज्ञान उसका निवारण है, शंका का निवारण है। जिसके भी मन में सच्चा शंका हो उसे सच समझाइए, उसे ज्ञान दीजिए, उनकी शंका अपने आप दूर हो जाए। तो ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काटना होगा। योग संन्यस्त कर्माण, एक योग एक संन्यास, एक समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समत्व। व्हाट इज समत्व? समान तत्व। राग और द्वेष दो महाशत्रु, राहु केतु से भी भारी। कुंडली में राहु केतु तो कुछ अच्छा फल भी देते हैं, बट ये राग और द्वेष कभी अच्छा फल नहीं देंगे। तो जब राग और द्वेष से ऊपर हम उठ जाएंगे, ये ज्ञान के द्वारा संभव है। और संन्यस्त यानी सभी कर्म के फलों का त्याग, यानी निष्काम भाव से कर्म करेंगे, फल की कोई अपेक्षा नहीं। तो निष्काम भाव से कर्म करता है वो संन्यास। संन्यास यानी त्याग। सम्यक त्याग इति संन्यास। सम्यक न्यास, त्याग यानी न्यास, सम्यक न्यास इति संन्यास। तो अच्छी तरीके से हमने त्याग किया है वो संन्यास। किस बात का त्याग किया है? स्वार्थ वृत्ति का त्याग, कर्मों का त्याग नहीं है। हम समझते हैं संन्यास यानी कल से कुछ नहीं करेंगे, हाथ में माला लेके बैठ जाएंगे। भगवान मूर्ख कहेंगे तुम्हें, यू हैव नॉट अंडरस्टूड भगवत गीता। कर्म का त्याग नहीं करना है, स्वार्थ का त्याग करना है। कल तक जो स्वयं के लिए जी रहे थे ना, आज विश्व के लिए जीना शुरू करो। कल तक हमारे कर्म मेरे और मेरे परिवार के लिए थे, आज आप जो भी करेंगे विश्व के उद्धार के लिए करेंगे, समष्टि के लिए करेंगे, ना कि केवल व्यक्ति के लिए। सन्निमेन्द्रिय ग्राणम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। चौथा श्लोक भक्ति योग का, लिख के रखो आपके सामने। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे कौन प्राप्त करेगा? सर्वभूत हिते रता। हर एक जीव, हर एक मनुष्य नहीं, हर एक जीव के हित के लिए जो कार्यान्वित होगा वो मुझे प्राप्त करे। गाय को रोटी डालो, कौवे को डालो, चींटी को आटा डालो, मछली को खिलाओ। कहाँ से आया ये सब? हमारे धर्म ने सिखाया। सर्वभूत हिते रता, अतिथि देवो भव। आज के जैसे पहले होटल्स नहीं थे गांव में, अगर कोई एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो किसी के यहाँ खाना पड़ता है, नहीं तो भूखा मरेगा इंसान। इसके लिए यदि आपके आंगन में कोई अतिथि आता है तो खाए बिना भेजना मत। ये सब क्यों आया? टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। समग्र सृष्टि की ये करने के लिए, सभी का, जो भी जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी प्राणी वनस्पति जितना है, सर्वभूत हिते रता। सबके लिए जो कार्यान्वित है वो संन्यास, और वो मुझे प्रिय है। ये भगवान कहते हैं। ये समझना है हमारी ये इतनी उच्च दृष्टि होनी ही चाहिए कि केवल हम अपने आप कहीं न सोचे लेकिन सबकी सोचे। इसके लिए सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापिता, कर्तव्य निभाने के लिए ये सृष्टि की रचना की है, भोग भोगने के लिए नहीं, अधिकार सिद्ध करने के लिए नहीं। बात अधिकार की नहीं, बात कर्तव्य की करो। जब सब अपने कर्तव्य की बात करेंगे तभी सभी लोग सुखी होंगे। अधिकार की बात, हक की बात केवल झगड़ा क्रिएट करे। यदि सुख से जीना है तो त्याग की बात करें, कर्तव्य की बात करें, तभी हम सुखी होंगे। तो योग संन्यस्त कर्म, कर्म कैसे करना है? राग द्वेष का त्याग कर और स्वार्थ का त्याग। राग द्वेष से ऊपर उठना है,
और स्वार्थ वृत्ति का त्याग। ये करके हम जब कर्म करेंगे और ज्ञान के द्वारा हम शंकाओं का छेदन करेंगे, शंकाओं को काटेंगे, तभी मनुष्य जीव सुखी हो सकता। आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। इसके ऊपर विचार आज नहीं करेंगे। आज 10:15 बज गए, हमारा समय हो गया है आज के प्रवचन का। ये सेकंड पार्ट है, वो अगले मंगलवार 9:15 बजे ऐसे ही हम मिलेंगे और हमारी ये जो ज्ञान यात्रा है वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर आज हमारा प्रवचन का अंत होता है। हाँ जी, सारे विश्व की शांति के लिए हम शांति पाठ करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति, शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण विजय भाई। जय श्री कृष्ण विजिल भाई।